from the English Forum, Nagpur, and all the participants. Advocate Rajesh has already spoken on time to look at sports as a career, a very important topic in our lives. Now let us get introduced to this time personality. Ajay sir had told me to be brief in my introduction, but I think it would be injustice on my part if I lack in giving his introduction in whole. Still, Ajay sir, I have tried my best to be very brief. Advocate Rajesh Bhuyer is Ajay sir's one of very good friends. Rajesh sir by profession is a legal consultant, researcher, having a sports background. He himself was a professional sports person. He has many expertise at his disposal. Sorry. He represented Vidarbha and BCCI tournament at junior level cricket. He has also represented University, Rashtrasanta Tukaroji Maharaj Nagpur University. He has also completed his cricket coaching course from BCCI. Mr. Rajesh has spent a lot of time in sports, and I'm sure he can guide us very well to understand more deeply through his today's topic, how inadvertently, how knowingly, unknowingly, we violate children's natural rights. Because through sports, he must have well read the psychology of the children. Advocate Rajesh has done his MSc Chemistry. He is also BA and has done BA in English, DBM. He is a gold medalist, LLB, PG Diploma in Cyber Law, LLM Constitutional and Administrative Law. Here too he has shown his merit and is a gold medalist. LLM Criminal Law stood second in merit. LLM in Human Rights and International Law, he was first merit. He has also done his MA in Public Administration, MA in Political Science, MA Mass Communication and Journalism. I welcome Advocate Rajesh on board for his today's topic. The board is yours, sir. Thank you, Ajay sir. Thank you, ma'am. Rajesh sir, over to you. I think it would be better if he joins on through his mobile, sir. Ajay sir, it was okay through his mobile. Okay. Rajesh sir. Sir. Carry on with the mobile, no problem. Hello, sir. Yes, sir. Shall I continue? Yes, Yes, sir. welcome on board, sir. Rajesh sir, the board is yours. The stage is all yours. Thank you, ma'am. Thank you very much. Once again, welcome to all members of English Forum Nagpur and interested parents and teachers. Today's webinar, how we parents and teachers, though we are the most interested persons in the development and upbringing of a child, how knowingly and unknowingly we violate the natural rights of children. ये वेबिनार हमको क्यों कंडक्ट करना पड़ रहा है या ये वेबिनार का टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, इसका कारण ही ये है कि एक पेरेंट और एक टीचर किसी भी बच्चे के अपब्रिंगिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है
कि उसके अपने एफर्ट्स में या उसके अपने ये सब एफर्ट जो एफर्ट्स वो लेता है, इसमें अनफॉर्चुनेटली एंड मोस्टली अनइंटेंशनली वो कुछ ऐसी गलतियां करता है या कुछ बच्चों के राइट्स इस तरह से वायलेट होते हैं कि जो वो बच्चों के डेवलपमेंट में एडवर्सली इफेक्ट, and definitely parents and teachers will definitely want to correct themselves. I believe that they are definitely वो इच्छा रखते हैं कि अगर हमारे से कोई गलती इसमें होती है तो हम उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि बच्चों के राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं। देयर आर सर्टेन राइट्स जो रिकॉग्नाइज भी किए हैं और प्रिस्क्राइब भी किए और थ्रू आउट द वर्ल्ड किए, लेकिन उसके बाद में भी कुछ राइट्स ऐसे हैं कि जो हमको कहने के लिए तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है करके, एंड दैट्स व्हाई वो प्रिस्क्रिप्शन में नहीं आ पाए। और ऐसे राइट्स ये हमारे जो रेगुलर जो प्रैक्टिसेस है उसमें वायलेट होती है और उसमें बच्चों को एक एडवर्स इफेक्ट होता है। बिकॉज़ ऑफ दैट मैंने ऊपर मेरा सेमिनार अरेंज किया हुआ है और वही सेमिनार लेके मैं आपके सामने आज प्रेजेंट। फ्रेंड्स, बच्चे एक स्पेशल क्लास है, एक स्पेशल कैटेगरी है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि दे आर द कस्टोडियन ऑफ टुमारोज सोसाइटी, टुमारोज नेशन, टुमारोज ह्यूमन बीइंग। तो डेफिनेटली जब वो इतने स्पेशल है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी, नेशन के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, तो उनके तरफ देखने का नजरिया भी एक स्पेशल बन जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल देम एज अ स्पेशल कैटेगरी। वो स्पेशल है लेकिन बहुत इनोसेंट है, उनकी अपनी लिमिटेशंस है, वो हमारे पे डिपेंडेंट है, उनकी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनकी ना उनको अथॉरिटी है ना उन रिसोर्सेज से उसका कंट्रोल, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी कम होती है। अब ऐसे में जब हम उनको एक चाइल्ड से एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक ऐसे एडल्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल हो, कॉम्पिटिटिव हो, कैपेबल हो, एक अच्छा कैरेक्टर उसका हो और नॉर्मेटिव हो, तब डेफिनेटली हमको उनकी जो केयर करनी है या उनकी जो अपब्रिंगिंग करनी है उसमें एक स्पेशल एटीट्यूड या स्पेशल अप्रोच हमको रखना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई भले ही ह्यूमन बीइंग के राइट्स अलग अलग स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अलग अलग इसमें रिकॉग्नाइज किए हुए हैं और प्रिस्क्राइब किए हुए अलग अलग स्टैट्यूट्स में, फिर भी मैं कहता हूं कि चिल्ड्रंस राइट्स दे गो बियॉन्ड द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स से भी थोड़े आगे है, और इसलिए हम आज इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आज का जो पेरेंट है, आज का पेरेंट ये प्रोग्रेसिव है, इवन अवर एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव। ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस की भी जरूरत है, बट है, हमने आगे ही बढ़ी है, दुनिया आगे ही बढ़ रही है। तो ये जो प्रोग्रेसिव जो सेटअप है, इस प्रोग्रेसिव सेटअप में एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है कि हम साथ ही साथ में पॉजिटिव भी बहुत है, बच्चों को लेके काफी पॉजिटिव हो जाते हैं। और एजुकेशन सिस्टम जो है या एजुकेशन जो है वो अब सर्विस एज सच एक नहीं रह गई है, इट हैज बिकम अ बिजनेस। एक ऐसा सोर्स बन गया है जिसमें से पेरेंट्स अपनी एम्बिशंस पूरे करना चाहते हैं, स्कूल्स अपने टारगेट्स पूरे करना चाहता है, और इवन कारपोरेट्स, बिजनेस इंडस्ट्री वो खुद के लिए रिसोर्स ढूंढना चाहती है। ये सब इसमें एक ऐसा सेटअप बन जाता है
कि जिस सेटअप में इन बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स, एक बहुत ही जो उनके लिए बहुत मायने रखते हैं उनके अपने डेवलपमेंट में, ऐसे राइट्स वायलेट होते हैं और बच्चों का परमानेंटली बहुत बड़ा लॉस होते हैं। हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं जाता, सिस्टम का उसके तरफ ध्यान नहीं जाता है, और इसलिए आज हम इस बात के पर में ध्यान दें। सबसे पहले देख लेते हैं कि बच्चों के क्या राइट्स हमने अभी तक रिकॉग्नाइज किए, उसकी एक सुपरफिशियल अपन उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे चिल्ड्रंस राइट्स के लिए सबसे पहले 1931 में एक डिक्लेरेशन आया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी साइन किया था। और उसके बाद में 1992 में यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हुआ, जिसमें इंडिया भी आज उसका पार्टी है। ये दो मेजर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद में यूडीएचआर है, जिसमें इन जनरल ह्यूमन राइट्स बताए हुए, तो उसमें कुछ चिल्ड्रन के भी राइट्स उसमें डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमारे अपने देश में जो फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में ह्यूमन राइट्स के साथ साथ में बच्चों के राइट्स भी इंक्लूड किए हुए। ये जो स्टैट्यूटरी राइट्स है जो अभी तक प्रिस्क्राइब हो चुके हैं, उनमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक है राइट टू सिटीजन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट राइट है कि जो बच्चा जहाँ कहीं भी उसका जन्म होता है, उस कंट्री की सिटीजनशिप उसको मिलती है। ये यूनिवर्सल राइट है, ये दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में है। सेकंड राइट वो है उसके बर्थ का रजिस्ट्रेशन। आज तो ये कंपलसरी कर दिया है, तो ये सिस्टम में का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। देन राइट टू लाइफ, जिस राइट टू लाइफ में हेल्थ, शेल्टर, गुड एनवायरनमेंट, ये सब चीजें उसमें, प्राइवेसी, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड। हमारे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया हुआ है कि ये सब है, इसका काफी बड़ा स्कोप है और बच्चों के हिस्से में इसका काफी स्कोप। देन उसके बाद राइट टू एजुकेशन। अभी आप सभी टीचर्स, पेरेंट्स इस बारे में जानते हैं, इस बार पिछले कुछ सालों में बहुत एक्टिविज्म हुआ है और इसमें काफी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को काफी ये किया हुआ है, स्ट्रिक्ट किया हुआ है। देन फ्रीडम फ्रॉम लेबरहुड, इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि कुछ हम जानते हैं बच्चों को अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू डू सम वर्क, बिकॉज उनकी अपने घर की माली हालत वैसी नहीं रहती है कि वो सब कुछ उनकी जरूरतें पूरी हो सके। तो ऐसे बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर भी बच्चों से कौन से काम करना है, कौन से नहीं करना है, ये सब के बारे में भी लिखित गाइडलाइंस है और स्टैट्यूट बहुत क्लियर है इस बारे में। देन उसके बाद आता है कि फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, बच्चों को हम किस हद तक पनिश कर सकते हैं और क्या पनिश नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हमेशा हम सुनते आए हैं। बट मैं आपको बता दूं कि द बॉटम लाइन इज कि दे शुड हैव 100%। पनिशमेंट ये हमने डेवलप किया हुआ कंसेप्ट है। पनिशमेंट इज टू बी गिवन टू द क्रिमिनल्स। पनिशमेंट गुनहगारों को देनी चाहिए। पनिशमेंट बच्चे अगर गलती करें, उस गलती के लिए पनिशमेंट नहीं हो सकती है। इसके ऊपर भी काफी एक्टिविज्म हुआ है और दे डेफिनेटली डिजर्व दिस फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। उसके बाद में कुछ दूसरे ऐसे स्टैट्यूट्स है कि जिन स्टैट्यूट्स में भी बच्चों के राइट्स को प्रिजर्व किया है। जैसे हमारे कुछ फैमिली लॉज है, राइट टू मेंटेनेंस दिया हुआ है, जिसमें बच्चा 18 साल का होने तक उसके पेरेंट्स को उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उन पेरेंट्स के ऊपर में है।
राइट टू मेंटेनेंस के साथ साथ राइट अंडर लॉ ऑफ एडॉप्शन, अगर कोई बच्चा एडॉप्शन में लिया जाता है तो उस बच्चे के अपने राइट्स है। जो कोई उसको अडॉप्ट कर रहा है उसकी क्या ड्यूटीज रहेगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, एडॉप्शन में जो चाइल्ड आएगा उसके क्या राइट्स रहेंगे, ये सब उसमें दिया हुआ है। वो एडॉप्शन लीगलाइज कैसा होगा, ये सब चीजें लॉ ऑफ एडॉप्शन में दी हुई है। देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो माइनर है यानी जो 18 साल से कम उम्र का है, जो चिल्ड्रन है, उसके राइट्स कैसे रहेंगे, उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैलिडिटी रहेगी, वो कैसा इन्फोर्सेबल रहेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक रह सकती है, उसकी इम्यूनिटी किस हद तक रह सकती है। बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि हम इंश्योरेंस बनाते हैं या कुछ बाकी की भी कुछ चीजें हम करते हैं, तो ये सब बच्चों से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही ट्रस्ट एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट में भी इसी तरह से बच्चों का जो राइट है, बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, उस ट्रस्ट में उस बच्चों के क्या अधिकार रहेंगे, ये उसमें क्लियरली दिया हुआ है। देन सक्सेशन में, लॉ ऑफ सक्सेशन में बच्चा अगर छोटा भी है, माइनर है, तो उस वक्त उसके सक्सेशन के राइट्स कैसे रहेंगे और वो कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस बारे में दिया हुआ है। बहुत सारे क्रिमिनल लॉज में क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसके अगेंस्ट में उनका क्या प्रोटेक्शन है, ये उसमें दिया हुआ है। यानी सर्टन एक्ट्स अगेंस्ट चाइल्ड, वो किस तरह से क्राइम की डेफिनेशन में लाया हुआ है, और ऐसा करके बच्चों को जो एक प्रोटेक्शन, क्राइम के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। उसी तरह से अगर किसी क्राइम में अगर कोई बच्चा इंडल्ज हो जाता है तो उसकी क्या स्टेटस रहेगी, उसके भी अलग अलग लॉज में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है, उसमें उस तरह से प्रोविजंस दिए हुए हैं। और फिर एक स्पेशल कैटेगरी है, कुछ बच्चे किसी प्रकार से किसी तरह से कुछ डिसेबल्ड होते हैं, तो उनके कुछ अपने स्पेशल राइट्स होते हैं। ये सब राइट्स ऐसे हैं जो राइट्स ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं या अलग अलग स्टैट्यूट्स में इनको प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम उन चीजों पे जाएंगे जो हमारा आज का टॉपिक है या हमारा आज का जो एजेंडा है, कि हम बच्चों के वो राइट्स के बारे में बात करेंगे जो अभी तक हमने रिकॉग्नाइज नहीं किए। हमने किसी स्टैट्यूट्स ने वो हमको प्रोवाइड किए नहीं है, वो एक्सप्रेसली हमको मालूम नहीं है, और इसलिए हम उनका वायलेशन हमारे हाथ से अगर होता भी है तो हमारा को उस तरफ में ध्यान नहीं जाता है। नोइंगली अननोइंगली ऐसी चीजें होती रहती है। तो हम अब हम उस तरफ जाएंगे जिसमें हम वो राइट्स की बात करेंगे विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड इफ पॉसिबल शुड बी स्टैट्यूटरी राइट्स। मैं उन राइट्स की बात करूं कि जो राइट्स अभी हमको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, जो आज नहीं है, एग्जिस्टेबल नहीं है, लेकिन हमको उसको रिकॉग्नाइज करके कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के ये राइट्स हम प्रोटेक्ट कर सके या बच्चों को ये राइट्स हम दे सके। तो उन राइट्स में सबसे पहली बात अगर मुझे करना है तो मैं बोलूंगा कि राइट टू नेचुरल डेवलपमेंट। अब राइट टू नेचुरल डेवलपमेंट, ये इसमें हम इसका एम्बिट बहुत बड़ा हो सकता है, शायद आज का पूरा मतलब पूरा एक सेशन इसके लिए कम पड़ेगा, लेकिन इसको एक शॉर्ट में अगर मैं बोल चाहूंगा तो ये ऐसा राइट्स रहेगा जिसमें उस चाइल्ड के जो स्किल है उसका, या उसका जो पैशन है, या उसका जो लव है, उसकी जो इंटरेस्ट है। देखिए, जैसा कोई प्लांट, कोई एनिमल, ये जिस तरह से फ्लरिश होता है, जिस तरह से डेवलप होता है, और अगर हम ह्यूमन काइंड को देखेंगे या हम बच्चों को अगर देखेंगे, आप देखिए कि आपको ही ध्यान में आ जाएगा कि हम उनको नेचुरल वे में डेवलप नहीं होने देते। कहीं ना कहीं हमारे रिस्ट्रिक्शंस, कहीं ना कहीं हमारे तौर तरीके, कहीं ना कहीं हमारे लाइकिंग, ये उनको कहीं ना कहीं हम उनको इस तरह से दबा के रखते हैं कि उनके नेचुरल डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करते हैं। हमारे अपने इंटरेस्ट क्या है, हम क्या चाहते हैं,
हम हमारे कैलकुलेशंस करते हैं कि लाइफ में ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, और उस हिसाब से हम बच्चों के ऊपर में वो सब चीजें इम्पोज करते हैं। बच्चों के नेचुरल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें, उसका अपना एक फैमिली में उसका जो नेचुरल डेवलपमेंट हो सकता है वो डेफिनेटली उसके आइसोलेटेड इसमें नहीं हो सकता है। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। ठीक, बोर्डिंग स्कूल इज अ वन कंसेप्ट, वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन से डेवलप किया हुआ कंसेप्ट है। मैं उसके सक्सेस अनसक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। बोर्डिंग स्कूल का जो कंसेप्ट है या उसके जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर डिप्राइविंग योर चाइल्ड फ्रॉम द राइट फैमिली। और ये नेचुरल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात है कि आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से आपको डिस्कनेक्ट करना है, या आपका उनमें का जो उनका जो साथ है आपका, उसको लिमिटेड करना है। इससे नेचुरल डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, एक फ्रेंड, इसका जो अपना एक फ्रेंड सर्कल है, एक फैमिली सर्कल है, उसी उसी तरह से एक जो मोस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये सब चीजें उस बच्चे की नेचुरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से या हमारे अपने टारगेट के हिसाब से या हमारे अपने डिजाइन के हिसाब से हम उस बच्चे को एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट की एक स्कीम में झोंक देते हैं। वो सब सिस्टम को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन वो सब करते वक्त हम उसकी जो नेचुरल डेवलपमेंट है, एक हम क्या करते हैं, हम उसको एक कंपटीशन में उतार देते। तो नेचुरल डेवलपमेंट में अगर वो बच्चा, अगर वो कंपटीशन के इसमें और ये सब इसमें रहेगा तो उसके ऊपर सब तरफ से इतने सारे प्रेशर और इतना बॉदरिंग आ जाएगा कि उसका नेचुरल डेवलपमेंट नहीं होगा। नेचुरल डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, उस बच्चे की आइडेंटिटी, ये सब चीजें मार खाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट राइट की, तो मुझे बात अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी की, राइट टू अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी। देखिए चाहे आपने डिजाइन किया हुआ करियर हो, आपने डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम हो, या आपने कोई नेचुरल ये अगर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हो, उस बच्चे को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सबसे ज्यादा फैसिलिटीज, बिना अपॉर्चुनिटीज और बिना फैसिलिटीज के कुछ नहीं हो सकता। कोई भी एक्टिविटी में अगर उसे आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए रिक्वायर्ड जितनी अपॉर्चुनिटीज है और जितनी फैसिलिटीज है, ये हमको उसको प्रोवाइड करने की सबसे पहले व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ वेल टू डू फैमिलीज की बात नहीं कर रहा। आप प्लीज आप ये मत समझिएगा कि आप किसी भी चीज को पर्सनली या इंडिविजुअल इसमें मत लेना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो जनरल बात कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं वर्ड्स होते हैं या कहीं ना कहीं इसमें की ये कमियां हैं जो मैं यहाँ पे, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई ऐसा ना समझे कि हम तो देते हैं। हाँ डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आज हम इतने प्रोग्रेसिव है, आज का पेरेंट इतना प्रोग्रेसिव है, वो ये देता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी है या कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी कि जहाँ ये नहीं मिलती है या वो नहीं देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये अगर हम देते भी है तो भी हमको इस राइट को अंडरलाइन करना जरूरी है, इसको रिकॉग्नाइज करना। इससे मैं यहाँ कर रहा हूँ कि राइट टू अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू फैसिलिटी, ये उन बच्चों की हमने इंश्योर करनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। यहाँ राइट टू एक्सप्रेस को मैंने केवल राइट टू एक्सप्रेशन तक लिमिट नहीं किया है। यहाँ एक्सप्रेस का मतलब है कि वो अपने आप को, उसकी पूरी जितनी उसकी स्किल्स है, उसकी जो खासियत है, उसका जो पोटेंशियल है, उन सब चीजों को एक्सप्रेस कर। एक्सप्रेस डजंट मीन
एक्सरसाइज हो, ये सब वो एक्सप्रेस करने का हमको देना है। हम से बहुत सारे लोग टीचर हुए, क्या होता है हम लोग बहुत बार इस तरह से स्कूल में अगर वो कोई प्रेजेंटेशन का तो हम देखेंगे हुई से बेस्ड प्रेजेंटेशन में वी विल गेट द अपॉर्चुनिटी। अगर कोई खेल की बात तो सोचेंगे बच्चा सबसे अच्छा इसको होता है उस खेल में, कोई मीटिंग है या है तो सोचेंगे जो सबसे इसको करता है। हम ये चाहते हैं कि दूसरा बच्चों ये करना चाहते हैं, वो सबसे नहीं करता है या वो खराब कर रहा है, तो वो इस करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर रहा है, हमको उस हमको इंस्पिरेशन बात कर रहा हूँ जो राजेश सर, आपका आवाज क्रैक हो रहा है। सैटिस्फैक्शन में काफी, तो ये एक्सप्रेस हम हर बच्चे का हम ध्यान में रखना, हर हमने नहीं, हम उसका इवेल्यूएशन कर रहे हैं, हमको उसको नहीं उसका वो तैयार कर रहे हैं, हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो, तुम जितना हर चीज में जितना एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस करो। हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है कि छोटा बच्चा उसके हाथ में अगर एक ड्राइंग का कोई पेंसिल या कुछ स्केच पेन हाथ में लग जाए तो घर की दीवारों पे लिखना चाहता है और पेरेंट्स एकदम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर वरीड कि ये दीवार अब कैसी दिखेगी, कोई आएगा तो क्या बोलेगा। हम नहीं सोचते कि ये वो कैनवास यूज करना चाहता है, इसको ये सबसे बड़ा कैनवास दिख रहा है और ये चाहता है कि मैं यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करूं, उसको जैसा लगता है वो वैसा उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन हम उसको हमारे नॉर्म्स में हम उसको रोक देते। तो ये जो राइट टू एक्सप्रेस है ये इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। देन राइट टू ओपिनियन है, यस राइट टू ओपिनियन, ये भी जैसा राइट टू एक्सप्रेशन है उसी तरह से राइट ओपिनियन राइट टू एक्सप्रेशन में राइट टू ओपिनियन इंक्लूडेड है। और उनका ओपिनियन चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो और भी कुछ सारी चीजें हो, बच्चा अपने आप में एक ओपिनियन रखता है, लेकिन वो थोड़ा डरता है, वो पेरेंट से डरता है, वो टीचर से डरता है, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में। और कई बार उसको उसके ओपिनियन के लिए या उसकी गलतियों के लिए हमारे तरफ से ऐसा स्कोल्डिंग मिलता है कि वो थोड़ा डरा डरा रहेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो अपना ओपिनियन देना नहीं चाहेगा। तो उसका राइट टू ओपिनियन जो है, उसका राइट टू ओपिनियन हमको इंश्योर करना चाहिए कि किस तरह से वो अपना ओपिनियन रख पाए, केवल हमने उसको रोका नहीं ये बोल के नहीं होगा। वी हैव टू इंश्योर कि उसका राइट टू ओपिनियन वो एक्सरसाइज करे, उसका एक्सरसाइज उसने करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। वो छोटा है, वो नहीं समझेगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपना राइट टू ओपिनियन वो एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हमने उस चीज को इंश्योर होना करना चाहिए कि ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू चॉइस। हाँ, जब आज के जमाने में जब हमारे दो बच्चों ही होते हैं तो हम डेफिनेटली अपने बच्चों को सभी सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं और उनकी इच्छाएं भी करने की कोशिश करते हैं। और मुझे उस बारे में कोई डाउट्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक राइट ऐसा है, राइट टू चॉइस, कि जो हमको बच्चों का हमको ये राइट भी हमको ध्यान देना चाहिए कि इस राइट का वायलेशन हमारी तरफ से ना हो। उनकी चॉइस अगर गलत है तो डेफिनेटली हम उनको उस बारे में कन्विंस कर सकते हैं या हम उससे डेफिनेटली, क्योंकि कंट्रोल्स हमारे हाथ में है, लेकिन कंट्रोल्स और डिक्टेट
करना, इसमें फर्क है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि जो राइट टू चॉइस है, तो हमने उसके चॉइस को हमने हमारे हाथ में नहीं लेना चाहिए। चॉइस बच्चे का चॉइस ये बच्चे के पास रहना चाहिए, और उसके चॉइस को हमको रिस्पेक्ट भी करनी है। और जो जो चॉइस करने मायने से अच्छा है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलीगलिटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई बैड एलिमेंट उसमें नहीं है। ऐसे राइट्स को, ऐसे चॉइस को प्रमोट करने या उसको प्रोटेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये करने से भी बच्चे का पेरेंट्स के साथ का जो बॉन्डिंग है और उनके बीच में का जो एक रिलेशनशिप है, ये डेवलप करने में और बच्चे को आपको समझने में सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को आप उस बच्चे को अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे से तब समझ पाते हैं। तो इसके लिए भी ये राइट टू चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज राइट टू हैव अटेंशन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के पीरियड में। मोस्टली जब जहाँ दोनों पेरेंट्स ये वर्किंग हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बच्चे निग्लेक्टेड रह जाते हैं। और इसीलिए ये राइट हमने बहुत इसको इम्पोर्टेंस देना है कि दे आर डेफिनेटली हैविंग दिस नेचुरल राइट ऑफ अटेंशन। उनको अटेंशन मिलनी ही चाहिए। अटेंशन का मतलब केवल इतना नहीं है कि हम उनकी जरूरतें क्या है, उनका हेल्थ क्या है, स्कूलिंग उनका कैसा चल रहा है, या फिर बाकी और कहीं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, कैसे ना नहीं है। अटेंशन का स्कोप काफी बड़ा हो सकता है। अटेंशन जो है उसमें हमको उनके जो इंटरेस्ट है, जो उनका पैशन है, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसमें वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उन सब चीजों में हमको उनको अटेंड करना है। उनके साथ में क्वालिटी टाइम हमको बिताना है, उनके साथ में बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करना है, उनको बहुत सारी चीजें हमको ना केवल सिखानी है, लेकिन उनके साथ में हमको उसके साथ में उनकी उस जर्नी में हमको उनके साथ में चलना है। तो ये राइट टू अटेंशन, ये आजकल क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स जो मेनली काम पे अगर जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर सर्विस करते हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चा सवेरे स्कूल चले जाता है, उसके बाद में पेरेंट्स नौकरी पे चले जाते हैं, दिन भर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। शाम को बच्चा और पेरेंट दोनों थके भागे घर में आते हैं, और उसके बाद में बच्चे को होमवर्क है, ट्यूशन है, ये सब एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है। पेरेंट्स भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, कोई अपनी सर्विस के बाद में भी कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मदर्स वो खाना बनाना, ये सब चीजें उनके अपने हाउस होल्ड वर्क है, ऐसे सब इसमें बच्चे निग्लेक्टेड हो जाते हैं। तो ये राइट टू अटेंशन, इसको आपके लिए आपको एक क्वालिटी टाइम भी निकालना चाहिए और उसके तरफ ध्यान भी देना चाहिए। आप इसको कैसे आप इसको हासिल करेंगे या इसको कैसा आप इंश्योर करेंगे, ये हर इंडिविजुअल पेरेंट्स की अपनी एक एक्सरसाइज होगी। मेरा एम्फसिस इतना रहेगा कि आप अपने बच्चे को उसका ये राइट, उसको आपने इंश्योर करना चाहिए, बस इतना। नेक्स्ट वन इज राइट टू प्रायोरिटी। अटेंशन और प्रायोरिटी में आपको डिफरेंशिएशन ध्यान रखना। हम अटेंशन कर रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी अगर नहीं दे रहे। प्रायोरिटी का मतलब यह है कि जब हम, देखिए, आप जब कभी अगर आप अपने फैमिली के साथ में अगर कहीं पिकनिक पे भी जाते, तो आप अपनी चॉइस बच्चों के ऊपर थोप दो। भले आप पिकनिक को जरूर लेके जा रहे हो, लेकिन आप अगर अपनी चॉइस उनके ऊपर थोप दे रहे, तो देन यू आर वायलेटिंग दिस राइट ऑफ प्रायोरिटी। क्योंकि पिकनिक जो है आपने डिजाइन करना और बच्चों ने डिजाइन करना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, छोटे से छोटी चीजें, घरों में की छोटी से छोटी चीजें, जिसमें अगर हम बच्चों को प्रायोरिटी अगर देते, वो चीजें करने के लिए अगर हम उनको प्रायोरिटी, चीजों में डिसीजन लेने की अगर हम उनको प्रायोरिटी, उसमें कुछ कोई ऐतराज होना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। हम ऐसा क्यों माने
कि बच्चे के अगर हम उनके भरोसे इसको छोड़ दें तो वो कुछ गलत करेंगे, हमको उनसे ज्यादा समझता है, ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं। हम उनको प्रायोरिटी देके, हम उनको ये चांस देके, हम उनके अंडर में लीडरशिप और बाकी बहुत सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली उनके अंदर में डेवलप करा सकते हैं। लेकिन जब हम उनको प्रायोरिटी नहीं देते और प्रायोरिटी जब हम हमारे तरफ रख लेते हैं, तो बच्चा जो है वो एक, ठीक है हम बहुत लाड़ प्यार से उसको रखते हैं, लेकिन एक स्लेव से ज्यादा उसका कोई स्टेटस नहीं होता है, क्योंकि उसको सब कुछ आपका सुनना है, उसको सब कुछ आपके डायरेक्शन पे चलना है, उसको आपने सेट किए हुए सिस्टम में अपने आप को ढाल लेना है। ये सब इसमें आप समझिए कि उसको अगर फ्री एक फ्रीडम चाहिए, उसको अगर एक नेचुरल डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन सी चीजों के लिए आपको ये सब जो आपके सिस्टम की जो बंदिशें है, इनको कहाँ कहाँ आपको रिलैक्स करना चाहिए, इसका एक ध्यान सब पेरेंट्स को और सब टीचर्स को जरूर लेना चाहिए। देन आई कम टू फ्रीडम फ्रॉम ओवरबर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन। सी, मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स को बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे या पेरेंट्स बच्चों के लिए गोल सेट नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन का बर्डन कब आ सकता है, जब आप ये एक्सपेक्टेशंस आप एक्सप्रेस करते हैं और रेगुलरली, एकदम रेगुलरली एक्सप्रेस, ठीक है, हमारे इंटरेक्शन में हम लोग उनको एक डायरेक्शन जब हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम उनको एक रास्ता जब हम उनको दिखाते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर हम उसको एक्सप्रेस करना अगर कम करें, हम उसको स्ट्रीमलाइन जरूर करें, उनके लिए रास्ते जरूर बनाएं, लेकिन इनको उनके ऊपर में इम्पोज करते हुए एक्सप्रेस ना करें, तो उनके ऊपर में बर्डन नहीं आएगा, वही चीजें हासिल करने का बर्डन नहीं आएगा। वो एक टारगेट करके हम उनके सामने पेश ना करें, गोल करके उनके सामने बार बार एक्सप्रेस ना करें, तो बच्चे उस बर्डन में आएंगे। और ये क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध उन बच्चों की साइकोलॉजी से है, उन बच्चों के कॉन्फिडेंस से है, उन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट से। तो मैं ये भी चाहूंगा कि ये ओवरबर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये वैसे तो मैं जानता हूँ कि हर कोई इसको मानेगा। आप मुझे ये बताइए, मैं एक बहुत फ्रैंकली एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगा, हम हमारे दिल पे हाथ रख के कहे, क्या आपके मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के कारण अपन आज जो कुछ भी बने वो बने हैं? हम हर कोई हम सोचे कि सही में किसी के एक्सपेक्टेशन के बर्डन के कारण ही आदमी बन सकता है? तो ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस के कारण में कहीं पर भी कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। एक्सपेक्टेशन ये बहुत नेचुरल टेंडेंसी जरूर है, ये होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे, पेरेंट्स है, टीचर्स है, उनके अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन बनेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल करना हम उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे हासिल करना या कैसा उसको अंजाम देना है, उसके लिए हमको बहुत ऐसा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए कि जिसका बर्डन बच्चों पे। अब यही एक्सपेक्टेशन जो है, इस एक्सपेक्टेशन के चलते ही हम बच्चों के लिए जो हमने प्रोग्राम्स रखे रहते हैं ना, उन उसमें भी हम लोग बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। और इसीलिए मैं जो नेक्स्ट राइट्स की बात करता हूँ, तो वो है फ्रीडम फ्रॉम ओवरबर्डन ऑफ स्टडीज एंड वर्कलोड। यहाँ मैं पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का एक चीज की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है ना, उसी तरह हमारे ब्रेन की भी अपनी एक कैपेसिटी है। हम 24 घंटे में कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस है, वैसे ही हमारे ब्रेन की भी अपनी limitations। मैं एक एग्जांपल हमें बताता हूँ। मान लीजिए कि बच्चों को एक 400 मीटर के एथलेटिक ट्रैक को हम उनको बोलते हैं कि आप इसको एक 4 राउंड मारिए।
अब एक बच्चा जो है, और हमने उनको एक टाइम भी सेट कर दिया कि आपको ये जो 4 राउंड है ये आपको 15 मिनट में मारना है। चलिए ये एक हम इलस्ट्रेशन हम समझते हैं। अब ये 15 मिनट में वो दो बच्चों ने अगर ग्राउंड को राउंड मारना चालू कर दिया, और एक बच्चा सक्सेसफुली उसने बहुत अच्छे से एकदम वो चारों राउंड खत्म कर दिए, और एक बच्चा ऐसा है कि वो शायद 15 मिनट में वो नहीं कर पाया, या 4 राउंड कंप्लीट नहीं कर पाया, पूरा थक गया है, वो नहीं कर पाया, ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो नहीं कर पाया। जो एक बच्चा बहुत अच्छे से कर पाया, हमने 15 मिनट का टाइम सेट किया था, उसने 15 मिनट में 4 राउंड बड़े मजे से कंप्लीट कर, और एक बच्चा है जो नहीं कर पाया। अब हम क्या करेंगे? जो बच्चा नहीं कर पाया है, क्या हम वो बच्चे को ये कहेंगे कि बेटा तू ये नहीं कर पाया तो तू और 4 राउंड मार? क्या वो कर सकता है? किए जाने वाला। जो बच्चा 4 राउंड नहीं मारा है, उस बच्चे को अगर हम फिर से तू नहीं कर पाया ना तो और 4 राउंड मार, ये अगर हम अगर उसको उसको प्रोग्राम दे दें, तो उस बच्चे की हालत क्या हो जाए? यही गलती हम तब करते हैं जब हम किसी बच्चे के लिए, मतलब वैसे तो हमने सबके लिए सेट करके रखी भैया आपको इतना परसेंटेज लाना है। अब जो बच्चा ये परसेंटेज नहीं लाता है, तब टीचर भी उनको गाइड करते कि भैया आप कहीं पर अभी अलग से ट्यूशन ले लो। पेरेंट्स बोलते कि भैया आप अभी शाम को ट्यूशन को जाओ, आप और 4 घंटा पढ़ाई करो, आप और इतना ये करो। मैथ्स का टीचर बोलता है जब आप 10 न्यूमेरिकल बराबर सॉल्व नहीं कर पाए तो आप और 10 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। यानी हम क्या कर रहे हैं? उस बच्चे की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जो उसका नहीं है ये हमको पता चलने के बाद में भी हम उसके ऊपर में उसका बर्डन और बढ़ा रहे हैं, उसका वर्कलोड हम और बढ़ा रहे हैं। हमारा माइंड हो चाहे हमारी बॉडी हो, उस वो एक सुपर कंप्यूटर है, और ये ऐसा सुपर कंप्यूटर है कि जो जानता है कि उसको कब कब क्या करना है। आपके बच्चे का ब्रेन जानता है जब वो सवेरे उठता है और उसको मालूम है कि 1 घंटे के अंदर मुझे नहा धो के नाश्ता करके दूध पी के मेरे को स्कूल का ऑटो आएगा, मुझे उस पर बैठ के स्कूल जाना है। स्कूल पहुंचने के बाद उसको मालूम है अभी यहाँ से 8-9 बजे से 3 बजे तक मेरे को स्कूल में सभी प्रकार के टीचर्स आएंगे, मेरे को पढ़ाएंगे, और मेरे को वो सब सुनना है, मेरे को उन्होंने दिया हुआ क्लास में वर्क जो है कंप्लीट करना है। ये सब एक्सरसाइज उसको पूरी तरह से मालूम है। उसको तभी ये भी मालूम है कि फिर यहाँ से जाने के बाद में मुझे 2 घंटे की ट्यूशन को जाना है। उसको ये भी मालूम है कि मुझे आज जो होमवर्क दिया जाएगा वो रात को कंप्लीट करना है। मुझे उसे ये भी मालूम है कि मुझे जो ट्यूशन में होमवर्क मिलेगा वो कंप्लीट करना है। और इसका परिणाम ये होता है कि वो बच्चा जब स्कूल के पहले घंटे में क्लास में बैठता है ना, तभी उसका माइंड अपने आप को कब कितना अटेंड करना है और कब कितना इन्वॉल्व करना है इसके लिए प्रोग्राम बनाता है। और तब वो बच्चा आपकी क्लास में, आपकी उस पहली क्लास में भी वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर नहीं बैठता, या समटाइम्स वो बैठता ही नहीं है, फिजिकली वहां रहता है बट मेंटली वो वहां है ही नहीं। उसका ब्रेन उसको डायरेक्ट, देखिए ये हम लोग मानते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कई बार बोलोगे कि यार ये ध्यान ही नहीं देता है क्लास में, ये क्लास में बैठा ये ध्यान ही नहीं देता है। एक्चुअली ये उसका डेलिब्रेट एटीट्यूड नहीं है। ये जो बच्चा है जिसको आपने दिन भर इतनी सारी मेंटल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करके दिया है, उसके ब्रेन ने उसका प्रोग्राम इस तरह से सेट कर दिया है कि वो आपकी क्लास में अटेंड करेगा ही। वो अपने आप को प्रिजर्व करेगा कि ताकि वो दिन भर की ये सब चीजें झेल पाए। तो ये एक ओवर बर्डन है वर्कलोड का, स्टडीज का, जिसके ऊपर हमको जरूर गौर करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये ऐसा एक राइट है कि जिसके बारे में एक्सप्रेसली बात हो चुकी है, स्टैट्यूट्स में आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है जो डिस्क्रिमिनेशन
हम लोग अनोइंगली कर लेते हैं। ये घरों में होता है, ये स्कूल में भी होता है, और डेलिबरेटली होगा, लेकिन एक प्रैक्टिस में हो सकता है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। देन छोटे बड़े का भी डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। उसके बाद में स्कूल में एक सोशल स्टेटस, एक जो है इकोनॉमिक स्टेटस जो है, कास्ट जो है, ये सब पैरामीटर्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम नहीं डिनाई कर सकते कि आज हम डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, ऐसा हम कह नहीं सकते। ये होता है। एक मैं अपने दोस्तों में देखता हूँ, मुझे ये दिखता है, फैमिलीज में दिखता है, रिलेशन में भी देखता हूँ, दिखता है। और इसीलिए मैं इसको कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब जानते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हम लोग ओपनली मान भी लेंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ कि हमको इसको प्रायोरिटी पे हमको इसको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है उनके आपके साथ के रिलेशंस नहीं, उसके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेके तो उसके अपने किसी भी चीज के लिए एफर्ट्स लेने से, उसके अपने हर चीज में उसका एडवर्स इफेक्ट है। इसलिए किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मैं रिक्वेस्ट होगा हम लोग बिल्कुल अब करें। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन। ये एक बहुत सीरियस वायलेशन ऑफ देयर नेचुरल राइट्स है। कंपैरिजन, ये तो मैं तो मानता हूं कि इससे इससे खराब और कुछ भी नहीं हो सकता है बच्चों। हम लोग एक बहुत सी, और हम एक पेरेंट्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, सब जन करते रहते हैं। हम भाई को बोलेंगे देख तेरा तेरा वो बड़ा भाई देख तेरा, उसको देख, उसने कैसा ऐसा किया, उसने देख वो तेरे दोस्त को देख, उसने कितना 90% लाया, वो रिलेटिव, वो फ्रेंड, वो बैक। हम लोग जबरदस्ती हर बच्चे को हम लोग कहीं ना कहीं हम उसको कंपेयर करते हैं। क्लास में भी हम वो ये सब चीजें करते रहते हैं। कंपेरिजन, हम वो शायद कंपैरिजन से हम शायद उसको अवॉइड करना चाहिए, हमारे इंटेंशन शायद अच्छे हो, लेकिन उस कंपैरिजन से एक न्यूनगंड की जो भावना उस बच्चे में आती है, वो उस बच्चे को धीरे धीरे लाइफ में बहुत। पर ये कंपैरिजन किस लिए? आज तक दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल दो चीजें बहुत एक जैसी रही है? कंपैरिजन की जरूरत ही क्या है? हर इंडिविजुअल, हर हर बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उसका जो भी कुछ उसने लाइफ में करना है सब ऐसा कहीं हुआ नहीं है। आपकी मेरी किसी की भी किसी से कंपैरिजन करने से हम लोगों ने कुछ हासिल नहीं किया है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है, हमने जो कुछ भी हम जिंदगी में कर पाए हैं, वो अपनी अपनी कैपेसिटी से कर पाए। तो हमारी अपनी कैपेसिटी पे एम्फोसिस देने बजाय दूसरे की कैपेसिटी पे या दूसरे के अचीवमेंट पे अगर एम्फोसिस देते रहा है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट 100%। और मैं तो ये कहूंगा हर पेरेंट से कि आप अपने बच्चों को तो कभी कंपेयर मत कीजिए। कहिए आपके बच्चे ने अगर आपको कंपेयर कर लिया ना, अगर उसने अगर आपको बोल दिया ना कि अंबानी ने देखो अपने बच्चे के लिए कितना पैसा कमाया, या और भी किसी सेलिब्रिटी का नाम लेके उसने बोला ना कि उसने देखो अपने बच्चों के लिए क्या हासिल करके रखा है, हम हर पेरेंट्स से कहता हूँ कि नेवर नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी चाइल्ड। किसी भी चाइल्ड से, किसी भी दूसरे स्टूडेंट से उनको कभी कंपेयर मत कीजिए। लेट देम लिव एंड फ्लरिश देयर ओन लाइफ। हाँ, आप दूसरे के लाइफ से उनको इंस्पायर कीजिए, दूसरे के एग्जाम्पल से, लेकिन कंपेयर मत कीजिए कि देखो उसने किया तुम नहीं कर पा रहे हो। ये जो कंपेरिजन है, इंस्पायर जरूर कीजिए, एग्जाम्पल्स देके आप उनको मोटिवेट जरूर कीजिए, उनके जैसा बनने में उनको हेल्प जरूर कीजिए, उसमें कोई गलत नहीं है, वो तो उनके बेनिफिट वाली बात है। लेकिन कंपेयर करके हम उनको उनको इंसल्ट तो छोड़िए, लेकिन हम उनको, मैं इंसल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ह्यूमिलेट मत कीजिए। ये बहुत ऐसा ह्यूमिलेशन है, वो बच्चों के दिल बड़े मासूम होते हैं और वो इसमें से बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हो जाते हैं। तो प्लीज डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद।
नेक्स्ट इज राइट टू कंपेनियन। राइट टू कंपेनियन, ये मैं इस पर्टिकुलर इसमें मैं इसलिए इंक्लूड करता हूँ अभी, क्योंकि एक जमाना था जब हर किसी के घर में 2, 3, 4 उससे भी ज्यादा बच्चे हुआ करते थे। लेकिन अब एक ऐसा समय आया है जब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये सिंगल चाइल्ड और ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों तक अपना पेरेंटहुड लिमिटेड करते थे। मेनली जो जो बच्चा अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड है, उस बच्चे की काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये राइट टू कंपेनियन, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स शुड गो फॉर मोर देन वन चाइल्ड, या कंपेनियन मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सबलिंग. Sibling is a better companion, that I will definitely say. आपको उस बच्चे को देखिए, हम घर में रहते हैं, हम एडल्ट है, हम बुजुर्ग है, हमारे माँ बाप अगर हमारे साथ में है, वो हमसे भी ज्यादा वो ओल्ड एज में है, लेकिन उस बच्चे को उसकी अपनी फैमिली में, उसके अपने सराउंडिंग में, उसको उसके अपने बराबर का, जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता हो, जिसकी आदतें, जिसके इंटरेस्ट, जिसकी सब कुछ चीजें उसके अपने जैसी हो, ये बहुत जरूरी है। आप सब घर में टीवी देखेंगे और बच्चा पढ़ाई करेगा, उस बच्चे के मन पे क्या होगा? आप सब अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ खा पी सकते, घूम सकते, कभी भी बाहर आना जाना कर सकते, लेकिन उस बच्चे को आपने बिल्कुल उसका टाइम टेबल सेट, और वो अकेला है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिंगल चाइल्ड जिसके पास में कोई कंपेनियन नहीं। वो बच्चा अकेला है, वो अपने आप को कैसा महसूस करता होगा, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। उसको हम आदत डाल देते हैं कि भाई आपको तो हमारी बात सुननी है, हम बताएंगे वो सुनना है, उस तरह से आपको चलना ही है, ये हम उनको कंपेयर जरूर कर देते हैं। और बच्चे इस पोजीशन पे नहीं रहते हैं कि वो रिवोल्ट करें, और हम उनको रिवोल्ट सिखाते भी नहीं है, तो वो सीखते भी नहीं है। लेकिन कभी कभी उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि एक सिंगल चाइल्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, और इसीलिए बच्चे को कंपेनियन उसके अपने बराबर का कोई ना कोई उसके साथ में होना चाहिए, और एक क्वालिटी टाइम उसको वो मिलना चाहिए। सिर्फ स्कूल में जाने से और उसके डेस्क बेंच पे बैठने वाले बराबर के लड़कों से ये कमी पूरी नहीं होती है। जब वो अपने घर में आता है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठा हुआ है, जब वो अपनी फैमिली लाइफ जीता है, वहां पर भी उसको कंपेनियन है। इसलिए इंश्योर कीजिए कि फैमिली में, अगर जॉइंट फैमिली है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। नहीं तो हमारा नेबरहुड है और बाकी की भी हमारी जो बाकी फ्रेंड्स है, इस तरह में हमारा एक सेटअप ऐसा रहे कि बच्चे को एक उसकी अपनी कंपनी, उसको जो चाहिए वो कंपनी उसको काफी रेगुलरली उसको मिलती रहे, एंड ही शुड एंजॉय इट, ही शुड, मतलब उसको वो पूरी तरह से उसमें खुश रहे। इसके बारे में थोड़ा आपने ध्यान देना। एंड द लास्ट वन which I will like to mention is right to rest and leisure, entertainment. ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों को भी वर्क में से छुट्टी चाहिए, हमको भी रेस्ट चाहिए, और इस बारे में आप लोग जानते, मैं मानता हूँ कि हम लोग देते हैं बच्चों को, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको हमको मतलब निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम देते हैं, मैं मानता हूँ, उनको उनके रेस के तरफ में भी हम ध्यान देते हैं, और उनके लेजर एंटरटेनमेंट के तरफ में भी हम ध्यान देते हैं, इसमें कोई मुझे डाउट है नहीं। लेकिन इसको हमको एक राइट करके हमको इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए, बिकॉज उसी में से ही और आगे का मतलब जो भी बाकी का जो स्कूलिंग है या बाकी एक्टिविटीज है, उसके लिए बच्चों को जो एक मोटिवेशन चाहिए, जो एक एनर्जी चाहिए, ये सब चीजें उसमें से मिलती है। तो डेफिनेटली इस चीज को हमें ध्यान देना है। So those were some few rights जो मैं आज इस छोटे से वेबिनार में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। होप
कि आप लोगों को ये वेबिनार पसंद आया हो। ओवर टू यू अजय सर, प्लीज कंटिन्यू। Okay. Thank you so much, sir. Rajesh sir, it was really a wonderful information. And over to you, Shikha ma'am, if you have any questions, any participant wishes to ask any question. I request Baldev Ade sir to ask any question if he has in his mind. Sir, one question is there. Okay. Yeah, it is from Rakesh Yadav sir. In the chat box, he has said that what about the students who come for boarding school from remote area, from poor family for better education, facility and development, which is run by the government? I mean, उनको शायद ये बोलना है कि इनको राइट जो नेचुरल राइट्स हैं बच्चों की, उसके बारे में कौन अवगत कराएगा, ऐसा कुछ है शायद। आई अंडरस्टैंड। उन्होंने जो उन्होंने बहुत बराबर है। मैंने यहाँ पे डेफिनेटली बोला था, जो पहला जो मैंने राइट में किया था कि राइट टू नेचुरल डेवलपमेंट, और उसमें मैंने बोला था कि हम बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ये जो मैंने बोला था वो इस रेफरेंस में बोला था कि हम लोग जब बच्चा फैमिली में रहते हुए जब अच्छा एजुकेशन और सब चीजें यहाँ उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा रहने के बावजूद बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं और वो उस बोर्डिंग स्कूल की ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। उनके पास में पैसा है, दे कैन अफोर्ड दैट बोर्डिंग फीस, और इसलिए वो वहां पे ये कर देते हैं। मैंने इस रेफरेंस से ये कहा था बिकॉज फैमिली में रहते हुए डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स है वो उस बच्चे से ना छीन जाए। यहाँ ये जो क्वेश्चन सर ने पूछा है, ये क्वेश्चन जो है कि जो बच्चे देहात में से, रिमोट एरिया में से, आदिवासी एरिया में से दूसरे जगह उनको माइग्रेट होना पड़ता है फॉर एजुकेशन, ये भी एक प्रकार का बोर्डिंग ही है। वो वहां पे हॉस्टल्स में रहते हैं, आश्रमशाला में रहते हैं। यहाँ वो एक पर्टिकुलर इसके लिए उनके पेरेंट्स ने भेजा है बिकॉज उनके फैमिली में रहते हुए वो व्यवस्था नहीं। तो ये डेफिनेटली जो फैमिली में रहते हुए जो बेनिफिट मिलना है वो ऐसे बच्चों से जरूर वो बच्चे इससे जरूर डिप्राइव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जरूरी ये हो जाता है कि हम बच्चों को स्कूलिंग और बाकी डेवलपमेंट की ज्यादा से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और उसका हमको ये इस प्रकार बोर्डिंग है वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब रही यही कि ये बोर्डिंग स्कूल और इस तरह की अनुशासन इन होंगे नेचुरल का प्रोसेस कैसा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही जो सभी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की है, यही सब राइट्स के बाद अगर उस बोर्डिंग स्कूल को, उस आश्रमशाला को मैनेज करने वाला जो बोर्ड है या मैनेज करने वाली जो संस्था है, ये उसको इंश्योर करे कि बच्चों के साथ में यही सब चीजें, उनकी यही सब नेचुरल राइट्स इस तरह से प्रोटेक्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को काम करना है और उस व्यवस्था को ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना डिजाइन करना। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा भले ही उसके फैमिली में नहीं है, यहाँ पर उसको बोर्डिंग स्कूल में रहना पड़ रहा है, उसको आश्रमशाला में रहना पड़ रहा है, लेकिन उसका नेचुरल डेवलपमेंट होगा, इसको ध्यान में रखते ही ये सब प्रोग्राम बनाना। Yes, thank you, sir. Baldev sir, आप पूछ सकते हैं your question, please. हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, राजेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया मैंने लिख भी लिया हूँ सब। हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपने बहुत सारे राइट्स बताए बच्चों के लिए,
मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा एक जनरल है सर, बोलिए। कि हमारा जो संविधान है हाँ वो संविधान 1950 में लागू हुआ, और हमारा हाँ संविधान दुनिया में सबसे बेहतर संविधान ये माना जाता है। और संविधान में देश के हर नागरिक का, हर बच्चों का, हर महिलाओं का, हर बूढ़ों का, हर युवाओं का कल्याण हो, उनका डेवलपमेंट हो, इसका प्रावधान है। लेकिन इसका अमल करने वाली जो संस्था है सर, जैसे अभी सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, ये ईमानदारी से इसका अमल नहीं करती। आप कैसे देखते हैं इसको? एक जनरल क्वेश्चन है, इसका पूरा ईमानदारी के साथ अमल नहीं होता। अगर संविधान का पूरा ईमानदारी के साथ अगर अमल होता है तो इंडिया को बदलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा ही मुझे लगता है। आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल agree। सर इसके ऊपर आप मेरा कमेंट चाहते हैं क्या? हाँ, यस। मतलब इसमें मेरा ओपिनियन ही आप मान रहे हैं ना? आप हाँ हाँ सर, ठीक है, मैं समझ गया सर आपकी बात। सर आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है। उसका कारण ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब जो इतिहास था, हमने पारतंत्र देखा था, हमने कास्टिज्म देखा हुआ था, हमने डिस्क्रिमिनेशन देखा हुआ था। ये हमारे यहाँ पे इलिटरेसी थी, हमारे यहाँ पे गरीबी थी। ये सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इसका क्रेडिट मिला, और उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर में सबसे अच्छा कौन इसमें इसका स्टडी कर सकता है अनबायस वे में, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने चूज किया और उनकी अध्यक्षता में इसका ड्राफ्ट। इसीलिए मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूँ, और क्योंकि वो ये सब एंगल को स्टडी करके ड्राफ्ट बनाने में उनकी वो ज्यादा अनबायस वे में बनाएंगे, ऐसा सबका फीलिंग था। और हुआ ये, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ह्यूमन राइट दिए हुए, बच्चों के, महिलाओं के, जैसे आपने लिस्ट किया वो सब कुछ है। लेकिन सर इसमें दो चीजें हैं। एक, कुछ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स करके लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम बिल्कुल, जिसके बारे में हम सरकार जिम्मेदार, हम कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट्स की, किसी के भी राइट अगर वायलेट होते हैं तो उसके लिए रेमेडी मांगते हैं। लेकिन सर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन चीजों को फंडामेंटल राइट्स में ना ले हुए आपने जो एंगल छेड़ा, वो एंगल है सर कि जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, चाहे वो स्टेट्स की सरकारें हो, उन सरकारों के ऊपर में एक डायरेक्शन दी। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसमें सरकारों को डायरेक्शन दिया है कि आपको पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, और पब्लिक के वेलफेयर की बात करने के लिए वहां जो पॉइंट आउट किया उसमें बहुत सारी चीजें करने सारे, जिसमें मेनली फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, और बाकी का भी जो डेवलपमेंट है, स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ये चीजें उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं, मतलब इसके अगेंस्ट में हम जवाब नहीं मांग सकते अगर ये चीजें पूरी नहीं होती। और यही कारण है जो आपने जो क्वेश्चन किया या आपने जो कंसर्न दिखाया, उसी का कारण यही है कि ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में रहने के बावजूद हमको नहीं मिल पाती है, बिकॉज कि सरकारें इसी पार्ट 4 का सहारा लेते अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागती है, और धीरे धीरे हमारा जो वेलफेयर स्टेट है, यानी हमारा डिक्लेयर्ड वेलफेयर स्टेट, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है, तो वो वेलफेयर स्टेट से हट के पूरी तरह से एक कारपोरेट स्टेट हम लोग, और यही सबसे बड़ी समस्या है सर। अजय सर, हाँ मैम। हेलो। शायद दीपिका को कुछ क्वेश्चन पूछना है, मुझे उसका हैंड रेज दिखा है।
हाँ दीपिका, हाँ हाँ यस दीपिका। राजेश सर, हेलो। हाँ बोलना। हाँ आवाज आ रही राजेश सर, आपने जब स्टार्ट किया तो आपने कहा कि चिल्ड्रन राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन राइट्स। तो मैं हाँ, चाहूंगी कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें कि व्हाई आर चिल्ड्रन राइट्स मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन राइट्स। यस मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाँ। सॉरी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन राइट। मैंने हाँ। ये कहा कि दे आर बियॉन्ड ह्यूमन राइट। They are beyond, means they should be given more priority, they should be Okay. given more concern than the human rights. अच्छा, नहीं वही मैंने सोचा कि आपने ऐसा बोला, फिर ऐसा बोला ही क्यों कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन राइट। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, वेदर दे आर चिल्ड्रन और एडल्ट। हेलो। Yes. हाँ Just a minute, I हाँ am having a failure, so I will come right. Please bear with me. हाँ सर। क्या क्वेश्चन था? हाँ अरे सर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। हाँ सर, और एक थोड़ा सा मेरे को था, मुझे लगता है राजेश सर हमको आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ मैडम, अभी नाउ आई एम। हाँ तो मुझे और एक क्वेश्चन था सर। हाँ ह्यूमन राइट्स में तो सभी राइट आ रही है ना मेरी। हाँ आ रही है सर। पूछो। हाँ और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने जब बोला कि वी शुड गिव द चाइल्ड अ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और उसको जैसे बिहेव करना है, उसको जैसे बड़ा होना है, चॉइस होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होता है सर, जैसे मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछती हूँ कि जब हमारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स उनके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, पूरा फ्रीडम ही फ्रीडम है उनको, जैसे रहो खाओ पियो, तो हम क्या बोलते हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देता। और जब हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि उसको स्लेव बना के रखा है। तो अब हम इस असमंजस में कि भाई क्या किया जाए, जब उसको फ्रीडम देते हैं तो उसको सही गलत की पहचान नहीं होती है ना। तो प्रॉब्लम है ना, पेरेंट्स के मन में यही चालू रहता है कि बच्चा हमारा अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा बहुत रोक टोक करते हैं और कहीं कहीं उसको गलत समझ लिया जाता, और जो नहीं रोक टोक करते उसको हम बोलते हैं ये माँ बाप ध्यान ही नहीं देते। तो अब ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए? हाँ मैडम, देखिए ये सही बोला। देखिए मैं आपको एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये इश्यू जो है ये सोशल इश्यूज है। यस। अभी अगर कोई साइंस टीचर है तो वो मेरी इस बात को समझ पाएगा। हाँ। कि साइंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हाँ। उनका बहुत सीधा साधा जवाब होता है या उनका सॉल्यूशन बड़ा सीधा साधा होता है। हाँ। उसका कारण ऐसा है कि आप समझ जाइए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नागपुर में भी उतना ही है और अमेरिका में भी उतना ही है। आज से 50 साल पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है और आज से 200 साल बाद भी उतना ही रहेगा। लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स का ऐसा नहीं रहता है। सोशल प्रॉब्लम्स के बहुत डायमेंशंस होते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, उसके डायमेंशंस एकदम वैरी होते हैं। तो इसका हम एक फ्रेम्ड सॉल्यूशन हम नहीं बता सकेंगे। हाँ। लेकिन इस इशू को हमको पहले समझना पड़ेगा। यस। कि हम जो राइट को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, जिस राइट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। अब वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए जो बाकी के आपने जो बातें बताई वो उसमें के हर्डल्स है ना, वो उसमें आने वाली दुविधा है या उसमें आने वाले बहुत सारे जो भी हम बोलेंगे कि दिक्कतें जो है, इसमें पेरेंट्स की तरफ से भी दिक्कतें आ सकती है, इवन आपके एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकती है, गवर्नमेंट से आ सकती है। हाँ। इवन आपके अपने बाकी का जो आपका काम है, ये सब चीजों को भी उसका भी अभी आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है। हाँ। आपको एग्जाम ही लेना है, ये सब चीजों की भी उसके मतलब बहुत सारी चीजें उसमें प्रॉब्लम खड़े कर सकती है। मेरा कहना यह है कि बेसिकली उनका राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू ओपिनियन, ये जो है
और वो बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा उसको हम किस तरह से चांस देंगे, तो उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान में रखना है। और आप ये हर बच्चे के बारे में आपका एक सोल्यूशन, आपको एक कॉमन सोल्यूशन नहीं निकलेगा, एक बार लेकिन अगर यू बीइंग अ टीचर, इफ यू आर इंटेंडेड, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका हर बच्चा, आपका हर स्टूडेंट, आप उसको मैक्सिमम वे में ये सब देने की कोशिश करना चाहते हैं ना, तो यू योरसेल्फ विल फाइंड दिस सोल्यूशन, यू विल गेट दैट ऑटोमेटिकली, यू विल फॉर थोड़ा बहुत वेरी करके, हर बच्चे के लिए एक तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरी करके यू कैन गेट एक ऐसा एक मीडियम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि जिस इस पे चलते हुए आप बहुत सारे बच्चों को सेटिस्फाई कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चों के इस राइट्स को आप इंश्योर कर पाएंगे। यस सर, थैंक यू। मैं वही चाहती थी कि इसको थोड़ा सा टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से एलाबोरेट करें तो बहुत नहीं नहीं, अच्छा बिल्कुल होगा। मैडम, मैं थैंक समझता यू हूँ सर। ये सब विषय। हाँ मैं वो ये सब हाँ जब मैं ये राइट्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें हाँ, आने वाली तकलीफ को भी मैं जानता हूँ। यस सर। हाँ, थैंक यू Sir, सर। one more question is there in the chat box. Imposing parental expectation is not good, but how can children plan for their future from their tender age? आपकी बात सही है, लेकिन टेंडर एज में ही बच्चा कैसे प्लान करे अपने फ्यूचर के लिए? ये सचिन पाई के सर की तरफ से क्वेश्चन है। मैडम विल यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? यस ऑफ कोर्स। उनका कहना है imposing parental expectation is not good, but how can children plan their future from their tender age? सी, हम चिल्ड्रन ने कैसा प्लान करना है, हम इसकी बात नहीं कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चिल्ड्रन बहुत सारी चीजों से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी स्पोर्ट्स में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कभी और कोई चीजों को लेके वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उस हिसाब से उनके अपने एम्बिशंस पैदा हो जाते हैं, और वो उस तरह से अपना एक करियर वो प्लान या करियर वो सोचते हैं, ड्रीम करते हैं। जब हम करियर को प्लान करने की बात कर रहे हैं तो प्लान करने के लिए डेफिनेटली एक मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। वो मैच्योरिटी एकदम बहुत छोटे बच्चों में तो नहीं रहती है। थोड़ा ठीक है, एक बार 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बाद के बच्चे इस तरह से डेफिनेटली कुछ प्लान कर सकते हैं। और उसमें पेरेंट्स, मैंने क्या कहा कि पेरेंट्स शुड हेल्प देम, और पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर में कोई करियर थोपना नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को उन्होंने अच्छे करियर के लिए या किसी गोल के लिए इंस्पायर करना नहीं, वो करना है, लेकिन वो करते वक्त एक उनके ऊपर में वो जबरदस्ती से थोपना और उनको मोटिवेट करना या उनको इंस्पायर करना या उनको गाइड करना या उनको सही करियर की दिशा दिखाना, ये दोनों ये चीजें अलग है। इसका एक बैलेंस कि हम किस तरह से बच्चों से ये सब चीजें, करियर से ओरिएंटेड चीजें उनसे करवा भी ले और बच्चे उसको एंजॉय भी करें, या बच्चे उसको लाइक भी करें, या बच्चे उससे सेटिस्फाइड। इसका एक बैलेंस हमको स्ट्रक करना पड़ेगा, इसका बैलेंस हमको हासिल करना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि बच्चे छोटे हैं, उनको उतना ये नहीं है कि मैंने क्या करियर में करना है और मैं क्या कैपेसिटी में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली आई एग्री विद, लेकिन बच्चों को हम डेफिनेटली कौन से इसमें उन्होंने जाना चाहिए जो हम समझते हैं। देखिए, आज पेरेंट्स सोचता है कि नहीं मेडिकल लाइफ में जाना ठीक है, मेडिकल में अच्छा सिक्योर्ड लाइफ है। कोई चाहता है कि नहीं तुम होशियार हो, तुम IPS IAS कर सकते हो। कोई बच्चा कोई उसका स्पोर्टिंग पोटेंशियल देख के पेरेंट्स सोचता है कि ठीक है यू शुड गो फॉर स्पोर्ट्स। तो ये पेरेंट ने आइडेंटिफाई करने के बाद में इसके लिए बच्चों को उसने मोटिवेट करना है या इंस्पायर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच लूं कि नहीं यार सबसे अच्छा लाइफ तो IPS IAS ऑफिसर का होता है, तो मैं अपने बच्चों को नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं, तुम्हारा ये सब ये नहीं है, बस तुमको IPS IAS में तुमको कुछ नहीं समझता, तुमको यही करना चाहिए, और इस तरह से हम उसको थोप दे। मैं इस चीज के खिलाफ। या कोई पेरेंट वो डॉक्टर है करके वो सोचता है कि नहीं मैंने तो इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा, आगे जाके तुमको यही करना है, तो तुमको अपनी पढ़ाई पे पहले ध्यान देना है, बाकी तुम्हारे इंटरेस्ट या बाकी तुम्हारी जो पोटेंशियल है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तुमको कुछ नहीं समझता, स्पोर्ट्स में तुम क्या कर लोगे, इसमें तुम क्या कर लोगे।
तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। Yes, I think there is no question now. Some words from my side, sir. बहुत ही सुंदर वेबिनार सर, और स्पेशली राइट्स हम सबको पता है कि चिल्ड्रन राइट क्या है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और बच्चों को ना बता के भी हम उनको वो फ्रीडम दे कि वो एग्जीक्यूट हो, ये आपने जो आज गाइड किया है दैट इज रियली कमेंडेबल. आई मीन हम लोग बहुत सारी अच्छी चीजें आज यहाँ पे सीख पाए हैं बिकॉज ऑफ योर वेबिनार. And now I'll just request Teresa George, madam, to Yes, carry ma'am. forward. Yeah. Yes, ma'am. Hello, hello. Am I audible? Yes. Yeah. Yes, ma'am. Okay. So we have come to the end of the webinar, and it is time for a vote of thanks. First and foremost, I thank Advocate Rajesh Bhoyer sir having graced the webinar of English Forum Nagpur. Thank you very much, sir. To have touched such an important topic which we should have known much earlier, well before at the starting of career. You explained us the legal laws regarding children, and you told us that this is the takeaway sentence that I have summarized from your talk, that children do not deserve punishment, criminals deserve punishment. I'm sure none of us will punish any student anymore. Those who have attended the webinar, they will not punish the student anymore. कीजिए, बच्चे का फेल्यूर या बच्चे का नॉन परफॉर्मेंस उसको क्राइम के साथ इक्वेट मत कीजिए. Not at all, not at all, not at all. And I'm sure we will not only be good teachers, but also good parents at home now, from now onwards. And we will stop compelling students, and we will never compare the students. As you have said, comparison is very harmful. This is what you have said. And you have explained everything in a very pleasant way, sir. And you have answered the questions very patiently. So once again, I thank you very much for being a guest at the English Forum webinar. Thank you, sir. My thanks and gratitude to Shri Baldev Ade, sir, President of English Forum Nagpur. Also my thanks to Dr. Shubhangi Pankhule, ma'am, who introduced the guest in an excellent manner. My thanks to very active Shikha ma'am, who moderated this webinar. Congratulations to you, ma'am, Shikha ma'am. My thanks to Deepika ma'am also. And my thanks to Ajay sir, who is so prompt and always ready to host the webinar. My thanks to the entire team of English Forum Nagpur who have planned, organized this meeting. Next, I'm grateful to all the participants and guests who have given their valuable time and attended the meeting. I hope you must have got new knowledge. Next, my thanks to the participants who asked questions and discussed the rights of children on this forum. With the promise that English Forum Nagpur will come back again with a new topic for the self-enhancement of English teachers. Be the best teachers of English language, be a confident teacher of English language. With this note, I take farewell from all of you and declare the webinar has ended. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Rajesh sir. Thank you, everybody. My pleasure, sir. Thank you, Rajesh sir, for giving your valuable time. And thank you very much, all the participants. Thank you.